بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ آج کی کلاس میں جو ہے 50 سوالات حل کرائے جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے امتحان کے لیے کرامت ثابت ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ پہلا سوال ہے، کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام کیا ہے؟ جی، تو سوال نمبر 51 کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی کہ سید محی الدین قادری زور۔ اب بات کریں سید محی الدین قادری زور کی، تو ان کا اصل نام محی الدین قادری تھا اور تخلص زور کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ بات کریں مولوی عبدالحق کی پیدائش کی، تو ان کی پیدائش 1870 عیسوی کو ہوئی ہے، 1870 عیسوی کو میرٹھ میں، اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ مسعود حسن خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ 1862، 1864، 1865 یا پھر 1866؟ جی، تو سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی 1864 عیسوی میں قائم کی تھی۔ یاد رکھیے گا، سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی 1864 عیسوی میں قائم کی تھی۔ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہی ہے دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا اور والدہ کا عزیز النساء بیگم۔ سوال نمبر 53 ہے، چک بست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ جی، تو چک بست کا شعری مجموعہ جو ہے وہ صبح وطن کے نام سے شائع ہوا ہے۔ بات کریں چک بست کی، تو ان کا اصل نام پنڈت برج نارائن چک بست جو ہے ان کا تخلص تھا۔ چک بست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی۔ اور ماہنامہ صبح امید جو ہے انہوں نے 1918 عیسوی میں جو ہے جاری کیا تھا۔ انہوں نے ماہنامہ صبح امید جو ہے 1918 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ اور چک بست کے داخل نصب شعری مجموعہ جو ہے ان کا نظم ہے داخل نصب رامائن کا ایک سین جو مسدس کی حیت میں ہے، رامائن کا ایک سین مسدس کی حیت میں، اور اس کے علاوہ جو ہے خاک ہند میں مسدس کی حیت میں، اور یہ ان کے شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے صبح وطن کے علاوہ جلوہ صبح اور اگلے لوگ، یہ تینوں جو ہیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ کس تحریک کے دوران اردو میں صرف ناول کا صنف یہاں ہونا چاہیے، صنف ناول کا آغاز ہوا؟ جی دوستو، تو اردو میں ناول کا آغاز جو ہے علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے سوال نمبر 55 دیکھیے گا، میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے؟ جی، تو میر تقی میر کا سن وفات ہے دوستوں 1810۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، اور یہ آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ گئے تھے، اور ان کا اصل نام محمد تقی تھا، ضرور یاد رکھیے گا، محمد تقی ان کا اصل نام تھا، میر تقی میر کا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ جی ساتھیو، میر امن نے باغ و بہار جو ہے وہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ کب لکھی میر امن نے باغ و بہار؟ تو یاد رکھیے گا 1802 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور باغ و بہار کی سن ارشاد جو ہے 1804 عیسوی ہے۔ میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہیں، پہلا باغ و بہار 1802 عیسوی میں نے لکھا، اور دوسرا گنج خوبی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ان کا جو باغ و بہار ہے دوستو، میر امن کا باغ و بہار، وہ جو ہے ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ ملا واعظ حسین کاشفی کا جو ہے ترجمہ ہے، نہیں سوری معذرت چاہتا ہوں، جو ہے
یہ گنج خوبی جو ہے ان کا جو دوسرا کتاب ہے گنج خوبی، وہ ملا واعظ حسین کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، اور UGC کے مطابق جو ہے انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ پھر سے جو ہے میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ ان کا جو دوسرا کتاب ہے گنج خوبی، یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، اور UGC جو ہے اخلاق محسنی کا ترجمہ نہیں مانتا ہے، وہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ تو ضرور یاد رکھیے گا، دونوں یاد رکھیے گا، UGC آپ سے یہی پوچھے گا انوار سہیلی والا۔ باغ و بہار کے کچھ کردار ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میر امن کی پیدائش اور وفات کی۔ تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اور یہ جو باغ و بہار ہے دوستو، یہاں ایک چیز میں اور ذکر کر دیتا ہوں، یہ جو ان کی باغ و بہار میر امن کا جو داستان ہے، اور یہ جو ہے طبع زاد نہیں ہے۔ باغ و بہار جو ہے طبع زاد داستان نہیں ہے، بلکہ یہ تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، باغ و بہار میر امن کی طبع زاد نہیں ہے، یہ تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، نو طرز مرصع 1775 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ نو طرز مرصع جو ہے یہ فارسی قصے چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ تو ضرور یاد رکھیے گا، میر محمد حسین عطا خان تحسین کا نو طرز مرصع ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے، اور نو طرز مرصع جو ہے فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ تو اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ اب یہاں بات کر لیتے ہیں میر امن کے باغ و بہار کے کچھ یہاں کردار دیے گئے ہیں، جیسے کہ خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر، یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت بہرور، دوسرے درویش کے کردار۔ خواجہ سگ پرست، بہرامند اور وزیر زادی، آزاد بخت بادشاہ کی کردار ہیں۔ بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاد، تیسرے درویش کے کردار۔ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال، یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ یہاں سے سوالات بنتے ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ پوچھا جاتا ہے کون کس درویش کا کردار ہے، تو یہاں سے ہر باری ایک دو سوالات ضرور بنتے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے جی، اب اگلا سوال دیکھیے گا، حالی نے شاعری کے لیے کون سی 3 شرطیں قرار دی ہیں؟ جی دوستو، تو مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری کے لیے 3 شرطیں جو ہیں، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو جو ہے ضروری قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری کے لیے 3 شرطیں قرار دی ہیں، وہ تخیل ہے، مطالعہ کائنات ہے اور تفحص الفاظ ہے۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پتی میں۔ ان کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو یاد رکھیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب مولانا الطاف حسین حالی کے جو ہے شاعری کے استاد ہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کب لکھا؟ جی تو یاد رکھیے گا 1893 عیسوی میں۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 58 کی طرف۔ نفسیاتی دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق ہے؟ جی تو نفسیاتی دبستان تنقید سے تعلق جو ہے وہ میرا جی کا ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا جی کا تعلق جو ہے نفسیاتی دبستان سے ہے۔ نفسیاتی دبستان سے جو ہے میرا جی کا تعلق ہے۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ثانی ڈار تھا۔ محمد ثناء اللہ ثانی ڈار ان کا اصل نام تھا، ضرور یاد رکھیے گا، چونکہ داخل نصاب ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں پوچھ لیا جائے۔ اور میرا جی تخلص کرتے تھے۔ پہلے یہ ساحری بھی جو ہے انہوں نے تخلص کیا ہے، ساحری تخلص جو ہے انہوں نے پہلے استعمال کیا ہے، اور بعد میں جو ہے میرا جی تخلص استعمال کرنے لگے۔ ہزلیہ شاعری میں جو ہے، ہزلیہ شاعری میں جو ہے انہوں نے تخلص لندھور کیا ہے، تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ڈیفرنٹ انہوں نے تخلص استعمال کیے ہیں۔ میرا جی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1949 عیسوی کو ممبئی میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
तीन रंग और पाबंद नज़में इनमें से किस शायर की किताबें हैं? इनका शेरी मजमुआ है तीन रंग और पाबंद नज़में। ये तो तीन रंग और पाबंद नज़में मीरा जी की जो है शेरी मजमुए हैं, ज़रूर याद रखिएगा। तीन रंग और पाबंद नज़्म, इस किताब के खालिक कौन है? तो मीरा जी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे? दाग, अमीर मीनाई, मिर्ज़ा गालिब या फिर आतिश? जी साथी, तो मोहसिन काकोरवी जो हैं वो अमीर मीनाई के शागिर्द हैं। मोहसिन काकोरवी जो हैं ये अमीर मीनाई साहब के शागिर्द थे। इनका असल नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन था। मोहसिन जो है इनका असल नाम मोहसिन काकोरवी का सैयद मोहम्मद मोहसिन था और तारीख़ी नाम मंजूर इलाही, इनका तारीख़ी नाम मंजूर इलाही था। इनकी पैदाइश इनकी 1826 ईस्वी को ही है काकोर में और वफ़ात 1905 ईस्वी को मैनपुर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? जी तो उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली की बुनियादी हैसियत हासिल है। उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है, ज़रूर याद रखिएगा। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, 5 बोलियों में से ये एक बोली है, तो ज़रूर याद रखिएगा। मगरबी हिंदी की 5 बोली कौन कौन सी हैं? तो पहला खड़ी बोली, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रिज भाषा, चौथा कन्नौजी और पांचवा बुंदेली। और इसमें जो है 2 बातें ज़रूर याद रखिएगा। जो है खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी बोली भी कहा जाता है और उर्दू और हिंदी जो है ये खड़ी बोली से ही निकली है। और इसके अलावा जो है हरियाणवी जो है, हरियाणवी खड़ी बोली और हरियाणवी ये दोनों जो हैं बोलियां अ का लहजा रखती हैं। अ का लहजा जो है खड़ी बोली और हरियाणवी रखती हैं। और इसके अलावा जो है ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों जो हैं ऊ का लहजा रखती है। ये ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए अ का लहजा कौन सी बोलियाँ रखती हैं तो खड़ी बोली और हरियाणवी। और अच्छा, यहाँ आपको अगर याद रखना है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ खड़ी बोली में यहाँ है और हरियाणवी में है। तो अगर है और है खड़ी बोली में है और हरियाणवी में है अगर मिलता है तो समझ लीजिए ये अ का लहजा रखती हैं। उसके अलावा जो है ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि ये ऊ का लहजा रखती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी थी? जी तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब ने तारीख़ की किताब मेहर नीम रोज़ लिखी थी, ज़रूर याद रखिएगा। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब ने मेहर नीम रोज़ लिखी थी और ये एक तारीख़ी किताब थी। मेहर नीम रोज़ का तारीख़ी नाम परतुस्तान था। परतुस्तान जो है मेहर नीम रोज़ का तारीख़ी नाम था। और मेहर नीम रोज़ में अहद तैमूर से लेकर हुमायूं तक की तारीख़ी हालात को बयान किया गया है। मेहर नीम रोज़ में अहद तैमूर से अहद हुमायूं तक के तारीख़ी हालात को बयान किया गया है। गालिब की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1797 ईस्वी की इनकी पैदाइश है आगरा में और वफ़ात 1869 ईस्वी को दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुले नगमा इनमें से किस की शायरी का मजमुआ कलाम है? जी तो गुले नगमा फ़िराक गोरखपुरी का शायरी मजमुआ है। फ़िराक की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को हुई है दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदर सबा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? जी तो इंदर सबा का ताल्लुक़ है ड्रामा से है। इंदर सबा किनका ड्रामा है? तो अमानत लखनवी का नेट के निसाब में शामिल ये ड्रामा है। और अमानत लखनवी ने इंदर सबा को हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। इन्होंने इस ड्रामा को इंदर सबा को 1852 ईस्वी में लिखा और ये ड्रामा जो है ठीक 2 साल बाद 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया। और इसके ठीक एक साल बाद
जो है 1855 ईस्वी में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनवी से शाया हुआ। लखनऊ में ये है और वहीं से जो है ये शाया हुआ है। तो 1852 में अमानत ने लिखा था, 1854 ईस्वी में इस ड्रामा को पेश किया गया और 1855 ईस्वी में जो है शेख रजब अली की फरमाइश पर लखनऊ से शाया हुआ। और बात करें इंदर सभा में कुल कितने गीत हैं, तो याद रखिएगा इंदर सभा में 15 गीत हैं और इंदर सभा का प्लॉट जो है एक ऐरा है और इंदर सभा जो है एक मंजूम ड्रामा है। तो इतनी बात ज़रूर याद रखिएगा। अब अमानत लखनवी के बारे में बात करें तो अमानत लखनवी का असल नाम सैयद आगा हसन था। सैयद आगा हसन इनका असल नाम और तखल्लुस अमानत। और अमानत लखनवी ने इन्होंने जो है बाद में अपना तखल्लुस उस्ताद भी कर लिया था। उस्ताद इन्होंने जो है आगे चल कर अपना तखल्लुस कर लिया था। और अमानत लखनवी की पैदाइश 1815 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात 1858 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई। बढ़ते हैं सवाल नंबर 65 की तरफ। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गए। यह किसका शेर है? फैज़, जिगर, हसरत या फिर फिराक गोरखपुरी। जब तक इन सभी के पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई है, ज़रूर याद रखिएगा 1911 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1984 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो लाहौर में। सियालकोट में इनकी पैदाइश और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में। जिगर मुरादाबादी साहब की पैदाइश कब हुई है साथियों? तो याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी की पैदाइश जो है 1890 ईस्वी को ही है। 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में और वफ़ात 1960 ईस्वी को गोंडा में। हसरत मोहानी साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई है मोहान में और वफ़ात 1951 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। और फिराक गोरखपुरी की पैदाइश वफ़ात का बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है जी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गए। फिराक गोरखपुरी का ये मशहूर शेर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है? जी, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का ज़रगुज़श्त नहीं है। ज़रगुज़श्त किनका है? तो याद रखिएगा मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का खुद नविश्त है। ज़रगुज़श्त मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का खुद नविश्त है जो 1972 ईस्वी में इन्हें तहरीर किया था मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने ज़रगुज़श्त को। और बात करें मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के पैदाइश वफ़ात की तो 1923 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, ज़रूर याद रखिएगा, टोंक राजस्थान में और वफ़ात 2018 ईस्वी को हुई है। इसके अलावा जो है हम अफ़साने रफ्ता, अशुफ्ता बयानी मेरी और गंज हाय गरामा, ये तीनों किताबें जो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। अशुफ्ता बयानी मेरी ये इनकी जो है ख़ुद नविश्त है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी के पैदाइश 1896 ईस्वी को ये जौनपुर में और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। इनके वालिद का नाम अब्दुल क़दीर था। अब्दुल क़दीर इनके वालिद का नाम था। और यहाँ जो दिया गया है गंज हाय गरामाया, गंज हाय गरामाया के बारे में बात करें तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमुआ है। गंज हाय गरामाया जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमुआ है, ज़रूर याद रखिएगा। और गंज हाय गरामाया 1937 ईस्वी में शाया हुआ है और इस खाके में टोटल 16 खाके शामिल हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और इनका दाखिली निसाब चारपाई, वकील साहब, ये दोनों मज़ामीन जो हैं मज़ामीन रशीद में शामिल हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और रशीद अहमद सिद्दीकी का जो है शामिल निसाब खाका जो है कुंदन है, ज़रूर याद रखिएगा। इनका दाखिली निसाब खाका कुंदन और इनके दूसरे खाकों का मजमुआ हम नफ़साने रफ्ताना में शामिल है। पहला खाकों का मजमुआ गंज हाय गरामाया और दूसरा खाकों का मजमुआ हम नफ़साने रफ्ता। हम नफ़साने रफ्ता 1966 ईस्वी में मंजर आम पर आया और पहला खाकों का मजमुआ गंज हाय गरामा 1937 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, ज़रूर याद रखिएगा। और हम नफ़साने रफ्ता में टोटल 7 खाकें शामिल हैं। पहले वाले में हम नफ़साने रफ्ता में 7 खाकें हैं, पहले वाले में यानी गंज हाय गरामाया में कितने खाके शामिल हैं? तो 16 खाके शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ।
इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की है? जी तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब हो जाएगा लफ्ज़ व मानी। बहुत ही मशहूर किताब है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का ये लफ्ज़ व मानी। अब यहाँ बात करें अदबी तख्लीक, तख्लीकी अमल और इफ़कार व मसाइल के, ये भी किताबें जो हैं अहम हैं। तो अदबी तख्लीक के मुसन्निफ़ हैं जमील जालिबी। जमील जालिबी का ये तसनीफ़ है। जमील जालिबी की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो जमील जालिबी की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को ये है अलीगढ़ में, और वफ़ात 2019 ईस्वी को ही है। तख्लीकी अमल के मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? तख्लीकी अमल, जी तो तख्लीकी अमल के मुसन्निफ़ हैं। मैं पैदाइश और वफ़ात ज़िक्र करूँगा और आपने गेस करना है वो कौन है। जी तो तख्लीकी अमल के मुसन्निफ़ के पैदाइश है दोस्तों 1922 से 2010 वाले, यानी वज़ीर आगा। 1922 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, वज़ीर आगा की पंजाब में, और वफ़ात 2010 ईस्वी को लाहौर में। अब बात करें इफ़कार व मसाइल की, तो इफ़कार व मसाइल के मुसन्निफ़ का मैं यहाँ पैदाइश वफ़ात रखूँगा, आपने गेस करना है। जी 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और वफ़ात 1972 ईस्वी को। जी एहतशाम हुसैन। इफ़कार व मसाइल के मुसन्निफ़ एहतशाम हुसैन हैं। और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश के बारे में बात करें तो फ़ारूक़ी की पैदाइश 1935 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई और वफ़ात 2020 ईस्वी को इलाहाबाद में। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने एक बहुत ही मशहूर माहनामा था जिसके बानी और मुदीर रहे हैं। जी तो याद रखिएगा, महनामा शब खून, शब खून के बानी जो है ये मुदीर रहे हैं। बानी और मुदीर जो है, माहनामा शब खून के बानी और मुदीर रहे हैं। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 68 की तरफ। वहदत तअस्सुर किस सिन्फ़ की नुमाया और अहम खुसूसियात हैं? जी साथियों, तो वहदत तअस्सुर जो हैं वो मुख्तसर अफसाना का अहम खुसूसियत है, ज़रूर याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि 50 सवालात को हल करना है इस क्लास में, तो फटाफट हम जो है करेंगे ताकि जल्दी से हो जाए। जी तो सवाल नंबर 69 है दोस्तों। यहाँ के सफ़ेद सियाह में हमको दखल है जो सो इतना है, रात को जूँ तो सुबह किया और दिन को जूँ तो शाम किया। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? जो तो इस शेर में सनात तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। जिस शेर में उल्टा सीधा अगर पाया जाए तो वो सनात तज़ाद कहलाता है। सुबह और रात और सुबह का यहाँ जिक्र किया गया है। जी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि सनात तज़ाद का एक नाम और भी है, वो कौन सा है। चलिए मैं आपको आखिर में बताऊंगा। चलिए जी सवाल नंबर, हाँ यहाँ अब डिस्कस कर लेते हैं। तज़ाद कलाम में ऐसे अल्फाज का आना जो मानी में एक दूसरे के ज़िद हों, और मुबालगा किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या मजम्मत उस हद तक करना कि सुनने वाले को यह गुमान हो कि इस वस्फ़ अज़म का कोई और मर्तबा बाकी ना हो। और तलमी, जिस शेर में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़यात या किस्से की तरफ इशारा हो, तलमी कहलाता है। इश्तिक़ा, जब कलाम में एक असल लफ्ज़ के चंद लफ्ज़ आएँ, इश्तिक़ा कहलाता है। सवाल नंबर 70 है, क़सीदे के अज्ज़ा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जी तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तशबीब, गुरेज़, मदा और दुआ। तशबीब, गुरेज़, मदा, मुदा। क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं दोस्तों, यहाँ तो अभी 4 दिया गया है। तो पहला तशबीब होता है, दूसरा गुरेज़ होगा, और तीसरा जो है मदा, और चौथा जो है दुआ, नहीं एक सेकंड, तशबीब, गुरेज़, मदा, मुद्दा और दुआ। मुद्दा और दुआ, यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए मदाह के बाद, तो 5 हो जाएगा। चलिए जी, और जो है ये जो है क़सीदा उर्दू के दूसरी क़दीम असनाफ़ सुख़न की तरह इसकी इब्तदाई नमूने जो हैं दक्कनी शुअरा के यहाँ मिलते हैं। क़सीदा का जो इब्तदाई नमूना जो है वो दक्कनी शुअरा के यहाँ मिलता है। अच्छा आप बताइएगा कि उर्दू का पहला क़सीदा को किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला क़सीदा को किसे करार दिया जाता है, और पहला बाकायदा क़सीदा को किसे करार दिया जाता है? जी तो उर्दू का पहला क़सीदा को कुली कुतुब शाह को करार दिया जाता है, और पहला बाकायदा क़सीदा को के बारे में बात करें तो सौदा को करार दिया जाता है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग इसके आंसर देने की कोशिश करें। 2 सही ज़ुमरे इनमें से कौन से हैं? जी साथियों, 2 सही ज़ुमरे की बात करें
जी, तो वो हो जाएगा चौथा, यानी कि बी और सी। महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हसन ख़ान, गोपी चंद नारंग, इनका ताल्लुक़ जो है दोस्तों लिसानियात से है। और सी वाले ज़ुमरे में भी जो है ये सभी जो है लिसानियात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर यहाँ आप देखिएगा जगन्नाथ दिया गया है ए में, तो जगन्नाथ जो हैं ये जगन्नाथ जो हैं शायर और मुहक्किक के हैसियत से जाने जाते हैं उर्दू अदब में, जगन्नाथ आज़ाद। और यहाँ वही चीज़ है कमर रईस, ये भी जो है मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं कमर रईस। तो यहाँ इस एतबार से ए और डी गलत होगा, बी और सी राइट होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर बाद। इस तरह के सवाल जो हैं अक्सर आते हैं, तो ज़रूर आपने ऐसे सवालात को मश्क करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्मों और शोरा के लिहाज से दर्ज झेल में से 2 सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। जी, तो नज़्मों और शोरा के लिहाज से यहाँ बात की गई है किसान, जंगल की शहज़ादी और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। एक इनका है, तो याद रखिएगा किसान, जंगल के शहज़ादी और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहा आबादी के दाखिल नसाब नज़में हैं। उसके बाद जो है यहाँ दिया गया है फ़र्ज़ लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा और दरबार दिल्ली। ये किन की नज़में हैं दोस्तों? तो ये अकबर इलाहाबादी के नज़में हैं। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई हैं? तो याद रखिएगा अकबर इलाहाबादी साहब की पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को ही है इलाहाबाद में, और वफ़ात जो है अकबर इलाहाबादी को 1921 ईस्वी को ही है। जोश मलिहाबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी को, मलिहाबाद में वफ़ात जो है 1982 ईस्वी को ही है। अब यहाँ बात करें ए और सी के, तो आदमी नामा, ये आदमी नामा यहाँ दिया गया है, और बंजारा नामा ये नज़ीर अकबर आबादी के नज़में है, लेकिन खाके हिंद जो है ये चकबस्त का नज़म है, तो इस एतबार से यहाँ ये गलत होगा। और मुनाजात बेवा व बरखा रुत ये हाल ही के नज़में हैं, और आसार सल्फ़ जो है इस्माइल मेरठी का नज़म है, तो इस एतबार से जो है यहाँ सी गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो है बी और एक सेकेंड डी होगा, बी और डी। ये तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शोरा और उनके मजमुआ कलाम के लिहाज से दर्ज झेल में दिए गए 2 सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। जी, इसमें आज़म सातवां दर और शाम होने वाली है, ये शहरियार का मजमुआ कलाम है। और इश्क़नामा कैनवास शब दरमिया ये इरफ़ान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है, तो इस एतबार से यहाँ ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। शोहरा और उनके मजमुआ कलाम के लिहाज से पूछा गया है। अब बात करें बी और डी के बारे में, तो निशात रूह, सरवद ज़िंदगी। निशात रूह और सरवद ज़िंदगी असग़र गोंडवी का शेरी मजमुआ है। और असग़र गोंडवी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें साथियों, तो असग़र गोंडवी की पैदाइश जो है 1 मार्च 1884 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है, और वफ़ात 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में असग़र गोंडवी की वफ़ात हुई है। अब यहाँ दिया गया है चराग़ सुखन, तो चराग़ सुखन के मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? चराग़ सुखन, जी, तो चराग़ सुखन के मुसन्निफ़ की पैदाइश और वफ़ात मैं आपके सामने रखूँगा, और आपने गेस करना है ये किनका है। जी, तो चराग़ सुखन जो है इसके मुसन्निफ़ की पैदाइश है 17 अक्टूबर 1884। 17 अक्टूबर 1884 जो है इनकी पैदाइश है। कहाँ है? तो पटना में, और वफ़ात 1956 ईस्वी को हुई है। जी, ये गाना चंगेज़ी का ये है चराग़ सुखन। ये गाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है 1884 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को ही है, और वफ़ात जो है इनकी 1956 ईस्वी को कहाँ हुई है? ये गाना चंगेज़ी की वफ़ात, जी, तो लखनऊ में हुई है। चलिए जी, अब यहाँ बात करें गुल नगमा। जी, तो गुल नगमा जो है, गुल नगमा और रूह कायनात के मुसन्निफ़ फ़िराक़ गोरखपुरी हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। और इसके अलावा जो है यहाँ दिए गए जब फ़सल बहारा आई थी, जब फ़सल बहारा आई थी उसके मुसन्निफ़ के पैदाइश और वफ़ात का मैं यहाँ ज़िक्र कर रहा हूँ। 1946
26 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 2015 ईस्वी को। जी कलीम आजिज़, जब फ़सल बहार आई थी, कलीम आजिज़ इसके मुसन्निफ़ हैं, ज़रूर याद रखिएगा। जब फ़सल बहार आई थी, कलीम आजिज़ का मजमुआ कलाम है। तो इस एतबार से दोस्तों जो है हमारा राइट आंसर जो है ए और सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से 2 जुमलों के अशआर सही हैं और 2 गलत। 2 सही अशआर की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो सवाल नंबर 74 का सही जवाब होगा ए और डी। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं, नल का एहसास तो इखलास दमन को दिया। इस नज़र के उठने में, उस नज़र के झुकने में, नगमा सहर भी है, आह सुबह गाही भी। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आप लोग मुझे इस शेर के जो तख्लीकार हैं उनके बारे में जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएँ। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से 2 जुमलों के अशार सही हैं और 2 गलत। जी तो सवाल नंबर 75 का सही जवाब होगा, ना व आला की तफसील न पूछो मुझसू, दफ्तर इश्क बसा इश्क के दीवान में आ। और अब शौक़ से तुम महफिल अग़ियार में बैठो, यहाँ गोश खलवत में अजब लुत्फ़ उठाए। बहुत ही मशहूर शेर है, वली दकनी का यह शेर है। नाला व आग की तफसील न पूछो मुझसू, ज़्यादातर सू आता है तो वली दकनी का शेर में आता है। और यहाँ जो दिया गया है, अब शौक़ से तुम महफिल अग़ियार में बैठो, यहाँ गोश खलवत में अजब लुत्फ़ उठाए। तो ये शेर जो है मोमिन ख़ा मोमिन का है। बी वाला जो शेर है वो वली का है, और सी वाला जो शेर है दोस्तों वो मोमिन ख़ा मोमिन का है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 76 की तरफ। झेल के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करें। जी तो अल फ़ारूक सीरतुन्नबी और अल ग़ज़ाली और हयात जावेद, ये क्या है, तो सवानी उमरी किताब है। अल्लामा शिबली ये जो है अल फ़ारूक जो शिबली की है, सीरतुन्नबी भी शिबली की है, अल ग़ज़ाली भी, हयात जावेद जो है मुल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। और जो डी वाला जो ज़ुमरा है, सफ़रनामा, रोम मिस्र शाम, लंदन, जापान चलो और इब्न बतूता के ताक़ुब में, तो ये सफ़रनामे का ज़ुमरा है और ये सिन्फ़ के एतबार से पूछा गया है। और सफ़रनामा रोम मिस्र शाम शिबली का सफ़रनामा है। जापान चलो मुज्तबा हुसैन का है, और इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफ़रनामा है। चलिए जी बात कर लेते हैं शिबली की पैदाइश के बारे में। 1857 ईस्वी इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को। मुज्तबा हुसैन की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी को हुई है कर्नाटक में, और वफ़ात 2020 ईस्वी को हैदराबाद में। और इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है जालंधर में, और वफ़ात 1978 ईस्वी को हुई है। 1978 ईस्वी को लंदन में हुई है, और कराची में इनका मदफन। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों पहला, ए और सी। गशाई आवाज़ गईन क़ाफ काफ होगा, और दंदानी आवाज़ दाल नून सीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। जी खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तय, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का, अपनी भी नादानी का। और कुफ्र कुछ चाहे इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। जो है ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो दिया गया है खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तय, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार तस्बीह सुलेमानी का। यह शेर जो है मीर तकी मीर का है। इस शेर के खालिक जो है मीर तकी मीर हैं।
چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ شعر ہے، اسی شعر سے یہ اٹھایا گیا ہے سوال. کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا کفر کچھ چاہے اسلام کی رونق کے لیے حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا جان گھبراتی ہے اندھوں سے تن میں کیا کیا تنگ احوال ہے یوسف زندانی کا بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا. اسی شعر سے جو ہے یہ سوال اخذ کیا گیا ہے. سوال نمبر 79 ہے دوستو. ذیل میں بولیوں کے 2 صحیح اور 2 غلط زمرے دیے گئے ہیں. 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے آپ نے جی. تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا بی اور ڈی. کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا قنوجی کھڑی بولی قنوجی بن. باقی اے اور آپ سی میں دیکھیے گا تو یہاں گجراتی ملا ہوا ہے اور بہاری یہاں پہ بھی ملا ہوا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. جی ابن نشاتی ملا وجہی غواسی اور جنیدی اور عبدل ملا نصرتی مقمی اور سید میران ہاشمی. ان کا تعلق جو ہے جو سی والے جو زمرے ہیں ابن نشاتی ملا وجہ غواسی اور جنیدی ان کا تعلق قطب شاہی یعنی کہ گولکنڈہ سے تھا، قطب شاہی دور سے تھا. اور جو ڈی والے زمرے ہیں عبدل ملا نصرتی مقیمی اور سید میران ہاشمی. تو ڈی والے زمرے کا تعلق جو ہے دوستوں وہ عادل شاہی دور یعنی بیجاپور سے تھا. ابن نشاتی کا ہو جائے گا ابن نشاتی کا مثنوی ہو جائے گا تو پھول بند، اور ملا وجی کا ہو جائے گا قطب مشتری، ملا وجی صاحب کا قطب مشتری، اور غواسی کا ہو جائے گا مینا ستونتی سیف الملک و بدیع الجمال، اور جنیدی کا ہو جائے گا دوستوں ماہ پیکر. احمد جنیدی ان کا اصل نام ہے، احمد جنیدی. اور عبدل کے بارے میں بات کریں تو عبدل کا ابراہیم نامہ ہو جائے گا. ابراہیم نامہ یہ جو ہے عادل شاہ ثانی انہیں جو ہے جگت گرو کہا جاتا ہے. اور نہیں یہ غلط میں نے کہا ہے عبدل کے بارے میں. عبدل کا ابراہیم نامہ ضرور یاد رکھیے گا. اور جو ہے اور اب ابراہیم نامہ کو جو ہے انہوں نے عادل شاہ ثانی یعنی عادل شاہ ثانی جو تھے وہ جگت گرو کے سے مشہور تھے، اور انہی کے فرمائش پر جو ہے انہوں نے اس مثنوی کو لکھا تھا. اور بات کریں یہاں ملا نصرتی کی تو ملا نصرتی کا جو مشہور مثنوی ہے وہ گلشن عشق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے علی نامہ بھی جو ہے ان کا بہت ہی مشہور ہے. اور مقیمی جو ہے مقیمی ان کا چندر بدن و مہیار اور فتح نامہ بکھیری جو ایک رزمیہ مثنوی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا ہے سید میران ہاشمی. تو سید میران ہاشمی کا ہو جائے گا ہمارا معراج نامہ اور مثنوی یوسف زلیخا، اور اس کے علاوہ جو ہے عشقیہ مثنوی بھی ان کے مشہور ہیں. چلے جی تو اس کا سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر جو ہے دوسرا ہوگا سی اور ڈی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آگہی دام ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط. جی تو سوال نمبر 81 کا صحیح جواب ہوگا یہاں، یہ تو غلط ہوگا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا، یہاں دوسرا ہونا چاہیے تھا مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقدیر کا، تو یہاں یہ غلط ہو جائے گا. خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی. مومن خواہ مومن کا یہ مشہور شعر ہے جو داخل نصاب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوستوں یہاں دیا گیا ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائے پیچ و تاب. یہ شعر بھی جو ہے مومن خواہ مومن کا ہی ہے. بڑھ گئے تم سے تو مل کر اور بھی بے تابیاں، اطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا. یہ غلط ہو جائے گا. چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہوگا دوستو مستقبل دربار دہلی فرضی لطیفہ اور برقی کلیسا اکبر الہ آبادی کے نظمیں ہیں. اور
बदली का चांद, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जोश मली आबादी का बी और डी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं इनकलाब मखदूम मोहिउद्दीन का है, हवेली जो ये भी मखदूम मोहिउद्दीन का है, चांद तारों का बंद ये भी मखदूम का है, लेकिन सुबह उम्मीद, सुबह उम्मीद किनका है तो याद रखिएगा चकबस्त का है। सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, सुबह उम्मीद जो है ये शिबली का है, और सुबह उम्मीद नहीं है चकबस्त का, बल्कि सुबह वतन है, सुबह वतन के नाम से है चकबस्त का, तो मैं थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़ कर गया था। सुबह उम्मीद जो है शिबली का है, ज़रूर याद रखिएगा। और चलिए अब यहाँ बात करें जो यहाँ दिए गए जातरी, समंदर का बुलावा और कलर का नगमा है मोहब्बत, तो ये जो है मीरा जी की नज़में, दाखिल निसाब मीरा जी की नज़में। और यहाँ दिया गया है दिल बेकरार हो जाए, तो दिल बेकरार जो है वो मीरा जी की नहीं है, किसी और का है, अभी जहन में नहीं आ रहा है जी। ये सागर सिद्दीकी साहब का है, दिल बेकरार हो जाए, तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा सी। और कौन सा था, बी और डी, हाँ ए यहाँ गलत हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 83 की तरफ। ज़ेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 83 का सही जवाब होगा चौथा, यानी कि सी और डी। तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, इफ़कार और मसैल सैयद एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ हैं। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, सुखन हाय गुफ्तनी, अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं। ए और बी में देखिएगा यहाँ मिक्स है, गालिब शख्स और शायर, गालिब शख्स और शायर मजनू का है, तारीख़ जमाल तेबी मजनू गोरखपुरी का है, अदब और ज़िंदगी सैयद एहतशाम हुसैन का, तनकीदी शायर आलम मसरूर का। इस एतबार से यहाँ ये गलत होगा। मवाजना अनीस दबीर शिबली का है, और उर्दू शेरुल अजम ये भी शिबली का, अल फ़ारूक ये भी शिबली का है। दास्तान तारीख़ किन के दोस्तों, दास्तान तारीख़ जी, तो दास्तान तारीख़ जो है राम बाबू सक्सेना का किताब है। यहाँ जो दिया गया है दास्तान तारीख़, ये दास्तान तारीख़ राम बाबू सक्सेना का किताब है। इसका पूरा नाम है दास्तान तारीख़ उर्दू, तो याद रखिएगा दास्तान तारीख़ उर्दू जो है राम बाबू सक्सेना का किताब है। सॉरी माज़रत चाहता हूँ, बल्कि ये दास्तान तारीख़ उर्दू जो है हामिद हसन क़ादरी साहब की था। अगर आप रेख्ता पर जाकर देखेंगे तो वहाँ हामिद हसन क़ादरी साहब दिया गया है। तो इस किताब के मुसन्निफ़ जो हैं आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ दुरुस्त कर देता हूँ, हामिद हसन क़ादरी। दास्तान तारीख़ उर्दू के मुसन्निफ़ हैं हामिद हसन क़ादरी। चलें अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल के बयानात में दो सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, ए और डी। रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के एक अहम खाका निगार और इंशाइया निगार हैं। मकतूबाती अदब में उर्दू मुअल्ला को खुसूसी अहमियत हासिल है। यहाँ दिए गए अख्तरुल इमान नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी हैं, जैसी अहम खुद नविश्त लिखी ख्वाब बाकी हैं। आलम मसरूर का अख्तरुल इमान का इसाबात ख़राबे में है, तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचा मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का नहीं है, बल्कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दनम का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए।
इंद्र सफ़ा बोस्तान ख़याल और ज़ाहक बोस्तान ख़याल ये दास्तान है, तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। और निशात इसम आज़म इश्क़नामा गुल नगमा ये शेरी मजमूए हैं, तो बी सही हो जाएगा। शब क़द्र आसार सल बाज़ आमद और ताज महल ये नज़में हैं, तो सी बी दुरुस्त हो जाएगा। बी और सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलबन ये मसनवी है, बिकट कहानी भी है। तज़हीक रोज़गार, तज़हीक रोज़गार क्या है दोस्तों जी, तो तज़हीक रोज़गार ये कसीदा है। और कुतुब मुश्तरी ये मसनवी, तो इस एतबार से यहाँ ए गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 85 का राइट आंसर पहला होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। वक्त काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा अब डिटेल में बात नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर सवाल और आंसर की बात करूँगा। चलिए जी, तो सवाल नंबर 86 का सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, यानी कि ए और डी। थी वह एक शख्स के तसव्वुर से अब वह रहना ये ख़याल कहाँ, वह फ़िराक़ और वह विसाल कहाँ, वह शब व रोज़ माह विसाल कहाँ। यह शेर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है, ज़रूर याद रखिएगा। यह अशार जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के शेर से अख़ज़ किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में अशार के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ठंडी ठंडी वह हवाएं व बयाबां व सहर, दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर। और वह एक जवा का हमला कुफ़ार रोकना, बढ़ते हुए हुजूम का वार रोकना। शेर एतबार से बी और सी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा इसका। चलिए, और इस शेर के तख्लीक़ात के जो है कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर लिख कर बताएँ। बढ़ते हैं सवाल नंबर 88 की तरफ। शायरों के एतबार से दर्ज ज़ैल अशार में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। उसके ही हाथ में है शाख़ ताल्लुक़ की बहार, छू लिया है तो नए बरगो समर आ गए हैं। इरफ़ान सिद्दीकी का ये शेर है। और हवा के दोष पे जाता है कारवाने नफस, आदम की राह में कोई प्यादा पाना मिला। यह गाना चंगेज़ी का मशहूर शेर है, तो इस एतबार से यहाँ बी और डी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए, यहाँ जो है तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो दिया गया है, रम किया इतना के आ हुए ख़तन लगने लगा। तो लगने लगा जो है ये इरफ़ान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज़ का नहीं है, तो इस एतबार से यहाँ ए गलत होगा। तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना के आ हुए ख़तन लगने लगा, ये शेर जो है इरफ़ान सिद्दीकी का है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 89 की तरफ। शायरों के एतबार से दर्ज ज़ैल अशार में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए जी। ऐसा आसा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। गालिब का ये शेर है। खातिर मायूस में नक्शे उम्मीदों व विसाल यार, नूर है सेहरा में गोया एक चरागे दूध का। यह हज़रत मोहानी का शेर है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। सवाल नंबर 90 दोस्तों। ज़ैल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत जी, तो 2 सही बयानात जो हैं हिंद आर्याई और हिंदी से नीति कुमार चटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का उर्दू तर्जुमा है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ मसूद हुसैन ख़ान हैं। यहाँ दिया गया है हिंदी लिसानियात का खाका, ग्राहम बेली का अंग्रेज़ी तर्जमा नहीं है। सैयद एहतशाम हुसैन का उर्दू की लिसानी तश्कील, मिर्ज़ा खलील अहमद बैग का लिसानियात से ताल्लुक़ बहुत ही मशहूर किताब है, तो ज़रूर याद रखिए, ज्ञानचंद जैन का नहीं है। तो इस एतबार से यहाँ ए और बी गलत, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 91 की तरफ। जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं है जो तशबीहात व सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में यह राय किसकी है? कलीमुद्दीन, आले मसरूर, एहतशाम या फिर मोहम्मद हसन। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा कलीमुद्दीन, 1908 से 1983 वाले।
आले मसूर की 1911 में और वफ़ात 2002 ईस्वी को। तो सैयद एहतशाम 1912 इसमें सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 और वफ़ात 1972। मोहम्मद हसन साहब की पैदाइश 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में और वफ़ात 2010 ईस्वी को दिल्ली में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। झेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? जी तो दोस्तों, तो एहसासी कमतरी पर जो है एडलर साहब ने जोर दिया है। एडलर ने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 93 की तरफ। वह बस उजड़ गई, वह बस गई उजड़ गई, यह मानी खेज जुमला किस अफसाने का है? जी तो ये जुमला जो है दोस्तों लाजवंती का है। वो बस उजड़ गई, यह मानी खेज जुमला जो है वो बस गई और उजड़ गई, यह मानी खेज जुमला लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायरी को गैर शायरी से तमीज़ देती है क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये किसका बयान है? तो ये मशहूर बयान जो है दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 से 1914 वाले का है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 95 की तरफ। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शरह शेर गोयत के तहत जो अशार कहे उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? जी तो मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शरह गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनका इजहार जो है दोस्तों तनकीदी ख़यालात से होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 96 की तरफ। लखनऊ की उर्दू शायरी इनमें से किस की किताब है? जी तो लखनऊ की उर्दू शायरी के मुसन्निफ़ हैं सैयद शबीहुल हसन। लखनऊ की उर्दू शायरी जो है सैयद शबीहुल हसन की किताब है। सैयद शबीहुल हसन की पैदाइश 1958 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 2012 ईस्वी को हुई है। लाहौर के रहने वाले थे। लखनऊ की उर्दू शायरी मशहूर किताब सैयद शबीहुल हसन का है। चले जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 97 की तरफ। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबा था। यह शेर किनका है साथियों? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 97 का सही जवाब होगा यहाँ असगर गोंडवी। असगर गोंडवी 1 मार्च 1884 ईस्वी को पैदा हुए गोरखपुर में और वफ़ात 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई साथियों? तो शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले जो है नावल लंदन की एक रात में इस्तेमाल की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नुकूशे ज़िंदा किसके खतूत का मजमुआ है? नुकूशे ज़िंदा जी साथियों, तो नुकूशे ज़िंदा जो है वो सज़्ज़ार ज़हीर के खतूत का मजमुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, अक्सर पूछे जाते हैं ये सवाल। बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ। इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? जी साथियों, तो चांदनी बेगम। कुर्रतुल ऐन हैदर के जितने भी नावल हैं वो किसी न किसी शोरा के शेर के टुकड़े से अख़ज़ किए गए हैं, उनके उन्वान, नावल के उन्वान। लेकिन चांदनी बेगम का जो उन्वान है वह किसी शायर के मिसरे के टुकड़े पर नहीं है। बात करें कुर्रतुल ऐन हैदर की दोस्तों, तो कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को ये है अलीगढ़ में और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में। इनका दाखिल निसाब अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार 1982 ईस्वी में मंजर आम पर आया। रोशनी की रफ्तार अफसानी मजमूआ कितने अफसाने शामिल हैं? जी तो 18 अफसाने शामिल हैं। और इनका दाखिल निसाब नावल कौन सा है दोस्तों? कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल निसाब नावल आग का दरिया है। आग का दरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? जी तो 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। और ये नावल कब शाया हुआ? ये तो 1959 ईस्वी में नावल आग का दरिया शाया हुआ। और इसमें कितने अदवार हैं? तो टोटल 4 अदवार हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।